Yes, go ahead, please. Yeah. Good morning, everyone. A very welcome to the webinar. This is the third webinar of our series. ProTutor welcomes all students and parents. Before we begin with our webinar, let me introduce you ProTutor. Just guys, give me a second. There is some glitch. Guys, give me a second. I'll just log in back. Amit, do you have the presentation with you? No, I don't with the latest changes. I've shared the link with you because my screen is freezing actually. Okay, if you put it in the group, I will. I sent you the link. I have sent you the link also. In where? Where did you send the link? In the personal, directly to you. Personal chat. Ahmad, can you see it? Yeah, I can see your screen. Okay, go ahead. Yeah, guys, sorry for that. So a very warm welcome to all. A very good morning to all the students and parents who are attending the webinar. Let me brief introduce you about ProTutor. ProTutor was founded by Ms. Khyati Dutt, and this platform is actually to connect students and tutors so that students can choose dedicated sessions for themselves, dedicated tutors from them across the globe, and they can study from best of the tutors. You can connect with tutors with whatever you feel like. Maybe it may be Zoom, it may be Google Meet, Skype. The platform provides the flexibility of it. You can connect with tutors anywhere you like. It is mainly focusing towards personalized tutoring or personalized coaching for to your child so that you can get best of the results. Let me introduce you with our team. Mrs. Khyati Dutt. She is the founder of the ProTutor, and by profession she is a workspace designer and a construction manager.
ProTutor has been her brainchild, and it came out because she was not able to find the right flexibility with timing, effectiveness of teaching, affordability, and mainly that it nothing was working with the specific need of her child. This is myself. I have been into education industry since last 10 years, and I have been working in various profiles like management and strategic functions in education domain. And I've been very fond of guiding students to make right career choices so that they can take the right career options in their future and can make good out of their careers. Since last 10 years, I have guided more than 30,000 students for the same. He is Smith. He is our software developer. He is 1 year of experience with different technologies like React, Java, and other things. Gaurang, yeah, he's Gaurang Patel. He's head of our engineering. He has more than 17 years of experience in various domains like blockchain, IoT, artificial intelligence. He's the main idea behind how the website will be working and how the app will be going on. Now I would like to request Ms. Anukriti to take the lead and go ahead with our presentation. आप सभी को मैं अनुकृति तिवारी मैं स्वागत करती हूँ इस लाइव वेबिनार में, जिसका आज का टॉपिक है आओ सीखें हिंदी, मीन्स लेट्स लर्न हिंदी। ये लेट्स लर्न हिंदी जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं अपने विषय बता दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है अनुकृति तिवारी। मैं हिंदी टीचर हूँ पिछले 15-16 सालों से। इसके पहले मैंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है 7 सालों तक। मेरा इस तरह के काम करने का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही ये काम कर रही हूँ। जब मैं ग्रेजुएट थी तब मैंने आकाशवाणी में काम किया और वहाँ भी स्क्रिप्ट राइटिंग एटसेट्रा का काम किया है। उसके बाद मैंने बीएड करके स्कूल टीचिंग ज्वाइन कर लिया और मैंने एमए हिंदी में गोल्ड मेडल से पास किया है और बीएड में डिस्टिंक्शन है मेरे। फिलहाल मैं यूके और यूएस में बच्चों को स्पोकन हिंदी सिखाती हूँ, वहाँ क्लास लेती हूँ। वैसे मैं उसके आगे के स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो एडल्ट हों या बच्चे हों, आगे भी पढ़ा सकती हूँ हिंदी अगर वो जानना चाहें तो। अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर हिंदी लेना चाहता है तो मैं उसे भी सिखा सकती हूँ हिंदी। फिलहाल ये आज का प्रेजेंटेशन जो है वो हिंदी, स्पोकन हिंदी, हिंदी बोले कैसे, उसको डेडिकेटेड है। तो आप मुझे संपर्क करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर और मुझे सोशल नेटवर्किंग पर भी खोज पा सकते हैं। जैसे ये मेरा फेसबुक का लिंक है, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा और लिंक्डइन पर मैं अवेलेबल हूँ। Anukriti, I'm sorry to interrupt you, but we cannot see your screen. Okay, wait. Yeah, thanks, Anukriti. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है और सोशल नेटवर्किंग साइट है ये, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। इसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को इसकी रूपरेखा, सिनॉप्सिस क्या है। ये अलग-अलग लेवल में बताया जाएगा। पहला है अक्षर ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान कराया जाएगा। वर्णमाला क्या है, कितने प्रकार की है। कोई भी भाषा जो है सबसे पहले शुरू होती है अल्फाबेट से। अगर अल्फाबेट का ज्ञान नहीं होगा, लाइक अगर अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो एबीसी जानना बहुत ज़रूरी है। एबीसी जानते हैं तो ही हम बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। When we need to express ourselves, we need a language, whether it is sign language or verbal language or written language. तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे, पहले दोनों ही लैंग्वेज सीखेंगे, रिटन और वर्बल दोनों शुरू करेंगे। तो लिखने के लिए अक्षर ज्ञान का होना आवश्यक है। क्या अक्षर में वर्णमाला सिखाएंगे, लिखना और बोलना। जब अक्षर ज्ञान पूरा हो जाएगा तो फिर अंकों का ज्ञान दिया जाएगा, हिंदी अंकों का ज्ञान
जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमें काम आती हैं लेवल 1 में प्रथम स्तर में हम उसे सीखेंगे। रंगों का ज्ञान, फिर मानव शरीर के अंगों का ज्ञान और इन सभी का लिखित और मौखिक अभ्यास होगा। ये टाइम बाउंड इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको 15 दिन में सिखा दूँगी हिंदी बोलना या 30 दिनों में सिखा दूँगी हिंदी बोलना। मैं इसलिए नहीं ऐसा कह रही क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग-अलग होती है। अभी मैं क्लास चूँकि ले रही हूँ इसलिए मुझे इसका अनुभव है कि एक बैच में अगर 4 स्टूडेंट होते हैं तो एक बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन चौथा बच्चा ऐसा भी होता है जो अभी बहुत टाइम ले रहा होता है। तो बैच में सबको साथ लेके चलना होता है। इसलिए मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकती हूँ कि लैंग्वेज जो है वो आप 15 दिन में आप सीख लेंगे या 6 महीने में सीख लेंगे। ये आपका अपना एफर्ट होगा कि आप कितने दिनों में सीखेंगे, मैं 100% देती हूँ अपना। सेकंड लेवल में मैं सिखाऊँगी आप लोगों को सप्ताह के दिनों का नाम, वीक के नाम, सीज़न्स के नाम बताऊँगी मैं। और थर्ड लेवल जो है, जो टफेस्ट लेवल होगा, जो उन लोगों के लिए जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं अभी तक, लेकिन जो प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर यानी लेवल 1 और लेवल 2 क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ यहाँ पर सीख चुके हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अब ये लोग बनाना सीख जाएँगे, शब्द बनाना सीखेंगे खुद से। जो शब्द हैं, उन्हें पढ़ना आ जाएगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या-क्या उसमें होगा, मैं बताऊँगी आपको आगे की स्लाइड्स में। तो लेवल 1 में हम सीखेंगे वर्णमाला के विषय में। तो वर्णमाला जो है कितनी तरह की होती है। बेसिकली स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं और संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या होता है, कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होता है, कितने होते हैं, कैसे किसे कहते हैं और इस ऐसे ही संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद 12 खड़ी है और 12 खड़ी से ही मात्राएँ बनती हैं, उसके विषय में बताया जाएगा। जैसे ये हिंदी स्वर वर्ण है, ये मैंने पिक्चर लगाया है इसलिए क्योंकि पिक्चर से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अ से अनार, ये मैं अभी ये ऐसे सिर्फ़ स्लाइड है, जब पढ़ाने के समय आता है, तो मैं इसे इंग्लिश में ही बताती हूँ कि अ से अनार मीन्स पोमेग्रेनेट, आ से आम मीन्स मैंगो, ई से इमली मीन्स टैमरिंड। ऐसे करने से क्या होता है कि जो बच्चे बिल्कुल हिंदी नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल हिंदी नहीं जानते, वो तुरंत कोरिलेट कर लेते हैं। और मैं ये जो है अनार, इसे इंग्लिश में भी लिखती हूँ। ANAAR अनार, ताकि उन्हें ये पढ़ने में सुविधा हो। और उसके बाद जब ये वो याद कर लेते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं, तो उसका जो इंग्लिश वर्ज़न होता है स्पेलिंग का, उसे हाइड कर देती हूँ और उनसे कहती हूँ सिर्फ़ ये पढ़ने के लिए। ये जो अनार, आम, इमली लिखा हुआ है, ताकि मैं ये श्योर हो जाऊँ कि इन बच्चों ने ये पढ़ना सीख लिया है। और यहाँ इंग्लिश वर्ज़न भी दिया रहता है बगल में उसका। उसके बाद हिंदी व्यंजन वर्ण आते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? इन्हें याद करने का तरीका क्या है? क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि ये जो व्यंजन वर्ण इतने लंबे-चौड़े होते हैं, ये अक्सर कन्फ्यूज़िंग होते हैं। बच्चे भूल जाते हैं, क के बाद क्या आता है, ठ के बाद क्या आता है, ऐसे। तो इसका फ़ॉर्मूला है एक मेरे पास। मैं उस फ़ॉर्मूले से याद कराती हूँ कि किस फ़ॉर्मूले से आप याद कीजिएगा तो जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। ये एक बार क, ख, ग, घ, अंग आपको तो याद करना ही पड़ेगा एक बार। लेकिन जब ये एक बार याद हो जाता है, तो उस फ़ॉर्मूले से आपको वो हमेशा याद रहेगा। ये संयुक्ताक्षर हैं, ये संयुक्ताक्षर क्यों हैं और कैसे बने, इनका क्या उपयोग है, ये सब मैं बताऊँगी। जैसे मैं ये बताऊँगी यहाँ अंगा, इयाँ और ण दिया हुआ है, ये प्राचीन हिंदी में उसका प्रयोग यानी कि एंशिएंट हिंदी में हम प्रयोग करते थे, यूज़ करते थे इसे, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं होता है, तो ये फिर ये क्यों है? इसकी जगह क्या यूज़ होता है? इसका रूप क्या हो गया है? इसका जो रूप है कैसे हो गया है? किस फॉर्म में ये चेंज हो गया, मैं ये भी बताऊँगी। आते हैं अगले बार अब 12 खड़ी। ये 12 खड़ी जो आप कहेंगे ये गिनती में 13 है लेकिन 12 कैसे हैं? 12 मैं 12 क्यों कह रही हूँ? इसलिए मैं 12 कह रही हूँ कि ये अ है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। और ये जितनी मात्राएँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गिनती में ये 12 है, इसलिए ये 12 खड़ी कहलाते हैं, 12 मात्राएँ हैं। इस तरह से आपको मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं सिखाऊँगी हिंदी में गिनती कैसे गिनते हैं और कैसे लिखते हैं। एक मोटा-मोटी तौर पर किसी को 10 तक की गिनती आती है लिखने, तो वो 100 तक की गिनती लिख सकता है क्योंकि इन्हीं अंकों का प्रयोग हम करते हैं। 10 के बाद 20 का शुरू होगा, जैसे 11, 12 तो 11, 12 फिर 13 फिर 14 ऐसे करके वो 20 तक की गिनती कर लेंगे। पैसे होते तो 100 तक की गिनती आ जाएगी। उसके बाद मैं बताऊँगी बेसिक चीज़ होती है रंगों का ज्ञान। रंग का ज्ञान हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, कौन-सा कलर है बेटा बताओ तो? वैसे ही ये छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा न्यू स्टूडेंट्स को जो अहिंदी भाषी हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं। उन्हें मैं बताऊँगी ये कलर कौन-सा है, चूँकि उन्हें पहचानने में भी दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ये कलर बताया है। उसी ये फूल का रंगोली का डायग्राम लिया है
और उसमें ये कलर उसी कलर को से लिखने की कोशिश की है कि किस कलर को क्या कहते हैं। देखिए आप प्रेजेंटेशन स्लाइड में कि ये जिस कलर का जो है उसी कलर से लिखा गया है, उसी कलर के ऊपर दिया गया है। इससे क्या होगा कि वो तुरंत समझ जाएँगे, अच्छा ये वाला ग्रीन है, ग्रीन के मैंने सारे शेड्स लिए हैं, ब्लू के भी शेड्स लिए हैं मैंने, इसलिए कि ताकि ये रेड के भी शेड्स हैं, ताकि उन्हें समझ में आए अच्छा ये भी लाल है और ये भी लाल है, दिक्कत ना हो। फिर आता है बॉडी पार्ट्स, जैसे छोटे बच्चे को प्रेप में सिखाते हैं प्रिपरेटरी क्लासेस में, वैसे ही स्पोकन हिंदी में भी सिखाते हैं कि हमारे शरीर के अंगों के नाम हिंदी में क्या-क्या हैं। आँख, नाक, कान, मुँह किसे कहते हैं, क्या-क्या होते हैं, ये सारे मैंने सेग्रीगेट करके बताया है यहाँ पर कौन-सा पार्ट क्या है और यहाँ पर एक जगह कलेक्टिवली बताया है किस पार्ट को क्या कहते हैं। ये एक साथ पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा। पहले चेहरा, फेस पे आएँगे, उसके बाद हम लोग हाथ पे आएँगे, ऐसे अलग-अलग करके आएगा और तो बताया जाएगा और हर लेवल कंप्लीट होने के पहले टेस्ट भी होगा। हर क्लास में टेस्ट हुआ करेगा, जैसे कि ये हेड है, अब इस हेड में कौन-कौन से भाग आ रहे हैं, इसमें ये फेस है, ये क्या-क्या आ रहा है इसमें, इन सब की स्पेलिंग्स क्या है, ये क्या पहले वर्बल होगा, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फिर ये रिटन भी होगा। और जब आपको स्पेलिंग लिखने भी आ जाएगी और आप बोलनी भी सीख जाएँगे, उच्चारण भी करना सीख जाएँगे, तो हम अगले पार्ट की ओर मूव करेंगे। अब हम आते हैं लेवल 2 की तरफ, जो हमारा सरल व्याकरण है, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का होना जानना आवश्यक है, ज़रूरी है। अगर व्याकरण का सही-सही ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, तो हम नहीं जान सकेंगे कि भाषा कैसे सीखी या भाषा कैसे सीखेंगे और कैसे बोलेंगे। इसमें मैं बताऊँगी आप लोगों के सप्ताह के 7 दिनों के नाम। सप्ताह के 7 दिनों के नाम बताऊँगी, तो मैं आपको साथ ही साथ समय भी बताऊँगी, कितने बजे क्या बजा। चूँकि हम गिनती कर चुके हैं, इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि कौन-सा अंक कहाँ है, तो कितना बज रहा है। मैंने संडे, मंडे लिखा है यहाँ पर, साथ में इसके हिंदी नाम भी लिखे हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे करके और उच्चारण के लिए यहाँ पर उन लोगों को दिक्कत ना हो, इसका इंग्लिश स्पेलिंग भी इसकी दी गई है। अब है सीज़न्स, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि पिक्चर से समझना आसान होता है, इसलिए मैंने वो कलर्स के पिक्चर लगाए थे। यहाँ मैंने सीज़न्स के पिक्चर लगाए हैं, ताकि बच्चे तुरंत देखें और समझ लें कि ये कौन-सा सीज़न चल रहा है। जैसे ये स्प्रिंग बहुत फूल खिलते हैं, बहुत सुंदर लगता है कि नेचर जो है वो चेंज हो गई और ठंड के बाद स्प्रिंग सीज़न बड़ा ही प्लीज़ेंट लगता है। स्प्रिंग है, ये समर का मैंने लिया है, ये रेनी सीज़न है। मतलब अगर बच्चे इसे ना भी देख रहे हों, तो तुरंत समझ जाएँगे कि अच्छा ये सीज़न है, पिक्चर देखने के साथ ही। उसके बाद ये 6 ऋतुएँ जो होती हैं, 6 ऋतुओं का मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। उस इन जब 6 ऋतुओं के बारे में मैं बताती हूँ बच्चों को, तो मैं ये भी बताती हूँ कि कौन सीज़न कैसा होता है। जैसे मैं फेस्टिवल से बताती हूँ उस समय में। जैसे स्प्रिंग में कौन-सा फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, समर में क्या होता है, रेनी सीज़न में क्या होता है और ये सब शरद ऋतु में कुछ सी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो इंडियन होते हैं और कुछ फेस्टिवल्स जो होते हैं जो इंडियन नहीं है लेकिन इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अलग-अलग सी जैसे कि वो शीत ऋतु में हम लोग अभी दिसंबर महीने में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने शरद ऋतु में सेलिब्रेट किया दुर्गा पूजा। अभी हाल में दिवाली बीती है शिशिर ऋतु में। तो ये सब हम बताते हैं तो बच्चे कोरिलेट आराम से कर लेते हैं कि अभी ये मौसम चल रहा है। उसके बाद डेली के खाने-पीने में हमें ये सब बेसिक टेस्ट मिलते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, चटपटा या मसालेदार। इन सब टेस्ट का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है, स्पाइसी है, सार है। किसको क्या कहते हैं वो मैंने एरो से बताया है और जिस कलर से ये लिखा हुआ है इंग्लिश में उसी कलर से ये भी लिखा हुआ है ताकि उन्हें याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जो कलर वहाँ दिया हुआ है वही जैसे जैसे देखिए यहाँ रेड है, ये ब्लू है, ये रेड और ब्लू है। यहाँ पे रेड है, ये डार्क ग्रीन है और ये भी रेड है। ये कलर रहेगा सेम तो ये याद करने में उन्हें सुविधा होगी। अब आए हम लोग इस पर, शब्दों की रचना पर। तो यहाँ तक आते-आते ये 2 शब्द, 2 वर्ण वाले जो शब्द हैं, 2 अक्षर वाले शब्द ये पढ़ना सीख जाते हैं, क्योंकि ये वर्णमाला इन लोगों को वर्णमाला का ज्ञान हो चुका है। फिर 4 अक्षर वाले भी सीख जाते हैं यहाँ पर देखिए 4 अक्षर वाले शब्द हैं, ये भी सीख जाते हैं। इतना आते-आते इन लोगों को इतनी हिंदी आ जाती है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हिंदी में। जैसे हम जब मिलते हैं तो भारतीय परंपरा के अनुसार अभिवादन करते हैं, नमस्कार कहते हैं। उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, आपका नाम क्या है? आपसे मिलकर खुशी हुई, धन्यवाद। ये सब जो औपचारिक शब्द हैं, जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन में काम में आते हैं, इसको मैं सिखाती हूँ इन्हें।
तो तीसरा जो अंतिम स्तर होता है ये काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा उन लोगों को टफ लगता है। प्रॉब्लम होती है कि यहाँ व्याकरण बहुत ज़्यादा आ जाता है और इन्हें बहुत सारे वर्क करने होते हैं और ये सारे वर्क जो होते हैं वो क्लासरूम में होते हैं। शब्द बनाते हैं वो लोग, मैं उन्हें वर्ण दे दूँगी, क, म, ल। अब कितने शब्द बन सकते हैं उनसे, ये बताना है उन्हें, बनाना है। फिर उन शब्दों से वाक्य बन उन्हीं शब्दों से वे बच्चे ही वाक्य बनाएँगे अगले में। फिर एक पैराग्राफ लिखेंगे, जब ये पैराग्राफ हो जाएगा तो उसके बाद उससे वो स्पीच करके तैयार करके सुनाएँगे। जैसे अभी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं दिवाली पर लिखे, अनुच्छेद लिखे और दिवाली पर उन्होंने स्पीच भी सुनाया। कुछ दिक्कत उन लोगों को थी, क्योंकि वो लोग तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे थे, जो उन्होंने पढ़ा है। माँ माता को माँ बोल रहे थे। हवन को यज्ञ बोल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें अभी उन लोगों को, चूँकि वो उतने अभी नहीं जानते हैं उतनी हिंदी, उतने शब्दों का ज्ञान उनके पास नहीं है, वोकैब्युलरी उतनी रिच नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत उन लोगों को होती है। बट सभी बच्चों ने सुनाया, लिखा और सभी ने सुनाया दिवाली पर। और जिन बच्चों का क्लास दिवाली के बाद हुआ, उन बच्चों ने ये भी बताया कि वो दिवाली उन्होंने कैसे मनाई। और सबसे अच्छा प्रेज़ेंटेशन तो रहा मेरे वाशिंगटन की स्टूडेंट का, उसने बाकायदा पिक्चर के साथ अनुच्छेद लिखा था। पिक्चर के साथ उसकी माँ ने रंगोली बनाया था, रंगोली की पिक्चर लगाई उसने। उसकी माँ ने मिठाई बनाई थी, तो मिठाई भी बताया उसने। उसकी सिस्टर ने नए-नए ड्रेस पहने थे, तो वो भी बताया उसने। बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन उसका था। हम आते हैं इस पर, लिंग, वचन, काल और क्रिया। इतना जो है ये बेसिक व्याकरण है, इतना जानना तो ज़रूरी है ही है। लिंग, जेंडर, वचन, नंबर, काल, टेंस और क्रिया, वर्ब और इनका रूप कैसे बदलता है, सिंपल टेंस क्या होता है, सिंपल वर्ब्स कौन-कौन से होते हैं और ये कैसे चेंज होते हैं, ये जाने बिना हम सही-सही भाषा नहीं सीख सकते हैं, सही-सही भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये 2 तरह के लिंग होते हैं। ता है, ती है, कहाँ प्रयोग होता है, वचन है, कैसे ये परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही काल है, काल के अनुसार कैसे परिवर्तित होता है, इसे भी लिखते हैं, बताते हैं। इतना होते-होते बच्चे जो हैं, आराम से छोटी-छोटी कहानियाँ जो होती हैं, वो पढ़ना सीख जाते हैं। पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सीख जाते हैं। छोटी-छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ जो है, इस तरह की कहानी वो सुनते हैं, पढ़ते हैं और कुछ कहानी वो अपने मन से बनाते भी। लाइक मैं कोई पिक्चर उन्हें दिखाती हूँ कि बेटा ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के तुम्हारे मन में क्या आइडिया आ रहा है? चूँकि ये 3rd लेवल है, यहाँ तक बच्चे लिखना और बोलना सीख चुके रहते हैं, इसलिए वो लिखते हैं कहानी, चाहे जैसी भाषा उनकी रहती हो, लेकिन ग्रेजुअली वो लोग इम्प्रूव कर जाते हैं, ये लेवल खत्म होते-होते। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें बताएँगे इसमें और ये लेवल जब यहाँ तक पहुँचेंगे बच्चे और स्टूडेंट्स तो उन्हें हिंदी काफ़ी अच्छी तरह से आ जाएगी, वो कम्युनिकेट करना और लिखना, बोलना सब सीख जाएँगे। अपना कीमती समय मेरे साथ शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर इस साइट्स पर। थैंक यू। Thank you, Anukriti. Thank you very much for this wonderful presentation. If anyone has any doubts, you can please ask in the Q&A option. We'll wait for a few seconds if anybody has doubts, else we'll close the webinar. I think nobody has any questions. So thank you everyone. Thank you for attending this webinar. It was nice interacting with you all. Thank you, Anukriti. Thank you, sir. Amit, you are the host. You can end the webinar. Thank you, everyone.